بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے تمام اسٹوڈینٹس خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اور آج ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں جی 10th کلاس اسلامیات لازمی تیسرا باب ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے، جو کہ ہے ہمارے پاس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا بے حصہ جو ہے ہم سٹارٹ کر چکے ہیں اور آج ہم کریں گے اس کا دوسرا حصہ، یعنی کہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک۔ باب نمبر 100 سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری زندگی، جس میں ہم پڑھ رہے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور سرچشمہ ہے ہدایت کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ اور اس کا آج دوسرا سبق پڑھیں گے خواتین کے ساتھ حسن سلوک، اور چیپٹر نمبر ہے جی ہمارے پاس 12، جو کہ ہم اپنی ایک نمبرنگ کے اکارڈنگ چل رہے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس یہ آتا ہے جی چیپٹر نمبر 12۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں جی اپنے اسی پیٹرن کے مطابق امپورٹنٹ چیزوں کو ہم لوگ ہائی لائٹ کرتے جائیں گے، اور ان ٹیکسٹ MCQ جو شارٹ کوسچن جو ہمارے پاس آئیں گے وہ بھی ساتھ ساتھ مارک کرتے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ ایکسرسائز کے جو کوسچنز ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ مارک کریں گے، تاکہ ہمارے پاس کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ کام مکمل ہو سکے۔ پیج نمبر ہے جی یہ ہمارے پاس 42، خواتین کے ساتھ حسن سلوک۔ خواتین خاندان اور معاشرے کا اہم ترین اور اساسی رکن ہے۔ مختلف تہذیبوں اور معاشروں میں خواتین کو بہت سے حقوق سے محروم رکھا گیا اور ظلم و ستم کا شکار بنایا گیا۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو خواتین کے حقوق ادا کرنے اور ان سے حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 ہے ہمارے پاس، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ان MCQs اینڈ شارٹ کوسچن کہ قرآن مجید کی کون سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، تو آپ بتائیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 19، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ نیکی سے حسن سلوک کا برتاؤ کرو میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ فرسٹ پیراگراف میں آپ لوگوں کے پاس ایکسرسائز کا فرسٹ شارٹ کوسچن آتا ہے، جو ہے کہ ہمارے پاس اسلام کی آمد سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا، اور آنسر ہے ہمارے پاس حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا اور ظلم و ستم کا شکار بنایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ اور سیرت طیبہ سے خواتین کی قدر و منزلت اجاگر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کی تاکید فرمائی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ آپ MCQs کے لیے مارک کریں گے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو کن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہے جامع ترمذی کی 3895۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت میں اپنے ساتھ کی بشارت عطا فرمائی جو بیٹیوں کی اچھی پرورش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملاتے ہوئے فرمایا کہ میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے۔ تو حدیث کی روح سے کتنی بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کو جو ہے وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی خوشخبری جو ہے وہ سنائی گئی ہے، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی۔ یہاں پہ ہے جی آپ کے پاس ایکسرسائز کا 4 شارٹ کوسچن کہ 2 بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ اب یہاں سے لکھنا سٹارٹ کریں گے اور یہاں تک کمپلیٹ آپ نے لکھنا ہے۔ آگے آ جاؤ جی پیج نمبر 43 پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پرورش کو جنت کا سبب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی پرورش کو جنت کا سبب قرار فرمایا؟ بیٹی کی پرورش کو۔ جس کی ایک بیٹی ہو اور وہ اسے دفن بھی نہ کرے، اس کی توہین بھی نہ کرے، اپنے بیٹے کو اس پر فوقیت بھی نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور یہ ہے جی ہمارے پاس سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 5146 کی، جس کی ایک بیٹی ہو اور وہ اسے زندہ دفن بھی نہ کرے، اس کی توہین بھی نہ کرے، اپنے بیٹے کو اس پر فوقیت بھی نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہ عزت دی کہ قیامت تک کے لیے اس کا مقام و مرتبہ سب پر واضح ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اور یہ ہے جی شعب الایمان کی حدیث 8927۔ اور اسی پیراگراف میں ہے آپ لوگوں کے پاس ایکسرسائز کا 3rd شارٹ کوسچن کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کس طرح کا حسن سلوک کرتے تھے؟ تو ان کا حسن سلوک کیا تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا کہتے؟ خوش آمدید کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی وجہ سے تمام حدیث
की रोशनी और कुरान की रोशनी से साबित होता है कि औरतों के साथ, बेटियों के साथ और बहनों के साथ अल्लाह और उसके रसूल ने हुस्न सलूक की जो है वो तलकीन की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत माँ के कदमों में करार दी है। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ की खिदमत को लाजिम पकड़ो क्योंकि जन्नत उसके कदमों में है। तो जन्नत किसके कदमों में है? माँ के कदमों में। सुनन नसाई की हदीस है 3106। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा हज़रत हलीमा सादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके एहतराम में अपनी चादर बिछाई और बहुत देर तक उनके साथ गुफ्तगू फरमाते रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा का नाम क्या है? हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अल्लाह ताला ने इमाम सालिया की जो सलाहियत अता मर्द को अता फरमाई है वो औरतों को भी बख्शी है। अलबत्ता मर्द और औरतों के दायरा अमल में थोड़ा फ़र्क है। मर्द अगर मैदान में जाकर जहाद करता है तो औरत अपने बेटों की अच्छी तरबियत करके उन्हें मुजाहिद बना सकती है। और ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है कि औरत जो है वो अपने बेटों की अच्छी तरबियत करके उन्हें क्या बना सकती है? मुजाहिद बना सकती है। अल्लाह ताला ने ख़वातीन का अजर उनके मजाज के मुताबिक काम में रख दिया है। अहद नबूवत में ख़वातीन मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ खिदमात अंजाम देती थीं। एक मरतबा ख़वातीन ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मर्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने की वजह से हमसे सबकत ले गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरबियत के लिए कोई दिन मुकर्रर फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक दिन का वादा फरमाया। उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन से मुलाकात फरमाते और उन्हें तालीम देते। और ये पैराग्राफ है जी आपके एक्सरसाइज का सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन की तरबियत के लिए क्या इक़दाम किया? उसमें आप बताएंगे कि ख़वातीन ने जब उनसे अर्ज़ किया कि मर्द जो है वो ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और हम सबकत ले जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की तरबियत के लिए भी एक दिन मुकर्रर फरमाया और उस दिन उनको तालीम देने का वादा किया। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पैराग्राफ। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हम पर ये बात वाज़ेह होती है कि ख़वातीन का एहतराम करें। ख़वातीन पर वाज़ेह कसने, घूर कर देखने, उनका मजाक उड़ाने, ख़वातीन के तलीमी अदारों में बाहर रश लगाने और रास्तों में बैठने से इज्तनाब करें। अवामी मकामात पर मुख्तलिफ लिबास पहनने से गुरेज करें और मुलाजिम पेशा ख़वातीन का एहतराम करें क्योंकि ख़वातीन के एहतराम के बगैर कोई माशरा तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकता। और ये है पैराग्राफ जो है वो आप लोगों के पास आपका एक्सरसाइज का लास्ट और फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने पूछा कि ख़वातीन के साथ किस तरह का रवैया अख्तियार करना चाहिए। और आपने यहाँ तक जो है वो कंप्लीट इसमें आंसर मेंशन कर देना है। तो ये थी जी हमारे पास रीडिंग, जिसमें हम लोगों ने रीड आउट भी किया, इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी हाईलाइट किया। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, आपका बहुत छोटा सा एक चैप्टर है जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया, साथ साथ उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को भी मार्क किया। आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और बाकी चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। जन्नत किसके कदमों में है? माँ। नंबर 2, कौन सा शख्स दो उंगलियों की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा? 2 बेटियों की अच्छी तरबियत करने वाला। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के एहतराम के लिए खड़े हो जाते थे। नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भलाई की वसीयत फरमाई औरतों के साथ। नंबर 5, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इस्तकबाल के लिए अपनी चादर उनके कदमों में बिछाई। नेक्स्ट है हमारे पास मुख्तसर जवाब जो कि हम लोग देख चुके हैं। पहला था हमारे पास इस्लाम की आमद से पहले औरतों के साथ कैसा सलूक किया जाता, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा कि जुल्म किया जाता था, उन पर जुल्म सितम किया जाता था और उनको उनके हकूक से महरूम रखा जाता था। नंबर 2 था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन की तरबियत के लिए क्या इक़दाम किया। इसमें हम लोगों ने सेकंड लास्ट पैराग्राफ में जो आंसर मार्क किया। हज़रत फातिमा ज़हरा की आमद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ किस तरह का सलूक करते थे। पेज नंबर 43 के सेकंड पैराग्राफ में हमने इसमें मार्क किया आंसर। नंबर 4, 2 बेटियों के साथ उससे सलूक करने वाले के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। हम लोगों ने पेज नंबर 42 का लास्ट पैराग्राफ इसका आंसर मार्क किया। और हमें ख़वातीन के साथ किस तरह का रवैया अख्तियार करना चाहिए, आपके चैप्टर का बिल्कुल एंड पैराग्राफ जो था वो इसका आंसर था। लास्ट और हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, बहुत ही तफसीली जवाब सिर्फ नईबा की रोशनी में ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक पर जामिया नोट तहरीर करें। चलिए जी वापस चलते हैं जी अपने टेक्स्ट की तरफ और हेडिंग के साथ, क्योंकि मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ, आपका लॉन्ग क्वेश्चन हेडिंग मार्क करवाऊंगी। साथ साथ आप लोगों ने हेडिंग अपनी बुक्स में, अपनी नोटबुक्स में मेंशन करते जानी है। और हेडिंग्स जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन पे अच्छा मॉडिफाई करती है, हमारी लेंथ प्रोवाइड करती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने की तरफ लेके जाती है। तो चलें जी, सबसे पहले हेडिंग आती है हमारे पास, कॉमन हेडिंग है जी तारुफ। आपकी सबसे पहली हेडिंग है और आपने सबसे पहली हेडिंग भी तारुफ की ही देनी है। आपके पास जितना भी आप लोगों को पिंक हाईलाइटेड टेक्स्ट शो हो रहा होगा वो आप लोगों की हेडिंग होगी। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे जी तारुफ की, और उसमें आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और आप लोगों ने उसमें लिखना है यहाँ तक, हुस्न सलूक का हुक्म फरमाए, यहाँ तक आपने लिखना है। लेट मी चेंज माय पेन कलर ताकि आप लोगों को विजिबल हो काफी। सबसे पहले तारुफ में आप लिखेंगे जी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आपने यहाँ तक लिखना है। उसके बाद आपको पिंक हाईलाइटेड टेक्स्ट शो होगा, आपने ये हेडिंग बनानी है कुरान मजीद में ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म, जो मैंने ग्रीन हाईलाइट भी अंडरलाइन भी कर दिया है। उसमें यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और इस आयत के तर्जमे तक, और जिसको अरबिक याद हो वो अरबिक भी याद कर सकते हैं। ये होगी 2 हेडिंग्स। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे सीरत तैयबा से ख़वातीन की कदरों मंजिलत। सीरत तैयबा से ख़वातीन की कदरों मंजिलत, उसमें आप लोगों ने ये कंप्लीट पैराग्राफ को मेंशन कर देना है।
नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी जन्नत की बशारत, अलग अलग सेपरेटली मैंने हाईलाइट किया हुआ जन्नत की बशारत, ये आपके पास हेडिंग आएगी और इसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने कंप्लीट लिख देना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे बेटी की परवरिश जन्नत का सबब करार, इसमें आप लोगों ने लिखना है बेटी की परवरिश जन्नत का सबब करार, इसमें आप हेडिंग में जो है वो को का वर्ड जो है वो कट आउट कर देंगे और लिखेंगे बेटी की परवरिश जन्नत का सबब करार, उसमें आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे एक दफ़ा मैं हेडिंग डिक्टेट भी करवाती हूँ और यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स मैंने यहाँ पे मेंशन भी की हुई है हेडिंग, आपको स्क्रीन पे भी शो होगी। आपने हेडिंग लिखनी है हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुस्ने सलूक, उसमें आप लोगों का ये कंप्लीट पैराग्राफ आ जाएगा जी हज़रत फातिमा के साथ हुस्ने सलूक। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जन्नत माँ के कदमों में, जन्नत माँ के कदमों में आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी इमाल सालिया और औरतों, या आप इसमें हेडिंग दे सकते हैं औरतों के इमाल सालिया, या आप लोग सॉरी इमाल सालिया तो नहीं हम लिख सकते, सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया। आप लोगों ने यहाँ पे हेडिंग देनी है इमाल सालिया और खवातीन, यहाँ पे आप औरत की हेडिंग जो है वो रिमूव कर देंगे, आप हेडिंग देंगे जी इमाल सालिया और खवातीन, या आप खाली इमाल सालिया की जो हेडिंग है वो भी दे सकते हैं, उसमें आपने यहाँ पे कंप्लीट मेंशन कर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने ये वाली हेडिंग नहीं देनी जो कि ये हेडिंग रिमूव कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, ये हेडिंग आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन नहीं करनी। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी खवातीन की तरबियत, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे खवातीन की तरबियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकदाम, यहाँ पे हेडिंग कंप्लीट मेंशन नहीं हुई, मेन पॉइंट्स है वो हाईलाइट किए गए हैं। आपको हेडिंग डिक्टेट करवा देती हूँ, आप यहाँ पे लिखेंगे खवातीन की तरबियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकदाम, जो मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, खवातीन की तरबियत के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे हम लिखेंगे जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकदाम, ये आपके पास हेडिंग आएगी। और दो टाइप करना यहाँ पे थोड़ा सा मेरे लिए लिटिल बिट डिफिकल्ट है, आप लोगों को मुझे उम्मीद है यहाँ पे समझ आ जाएगी। खवातीन की तरबियत के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकदाम, यहाँ तक आप कंप्लीट मेंशन करेंगे। लास्ट लिखेंगे जी आप हासिले कलाम, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे हासिले कलाम, और इसी के साथ आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक दफ़ा मेरे साथ आप लोग हेडिंग्स दोबारा से देखेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए। फर्स्ट हेडिंग है जी हमारे पास तारुफ की, नंबर 2 कुरान मजीद में खवातीन के साथ हुस्ने सलूक, नंबर 3 सीरत तैयबा से खवातीन की कदर व मंज़लत, नंबर 4 जन्नत की बशारत, नंबर 5 बेटी की परवरिश जन्नत का सबब करार, नंबर 6 हज़रत फातिमा के साथ हुस्ने सलूक, नंबर 7 जन्नत माँ के कदमों में, नंबर 8 इमाल सालिया और खवातीन, नंबर 9 खवातीन की तरबियत के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकदाम, और लास्ट है जी हासिल कलाम नंबर 10। तो टोटल 10 हेडिंग जो है वो हम लोगों ने बनाई है और उसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हम लोगों ने बाब सोम का हिस्सा बे का दूसरा सबक पढ़ा है जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है, खवातीन के साथ हुस्ने सलूक। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी है, कोई क्वेरी है या कोई ऐसी चीज़ को आपने समझ में कोई डिफिकल्टी आ रही तो आप लोग मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट होती है, काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।